Hello dear students, I extend a very warm welcome to all of you in my English video class for 29 June. I'm sure children you all are doing good, you all are keeping well and you all are happy, hale and hearty in your homes. Do take care of yourselves children, stay happy and stay healthy. We are doing lesson number 3 which is Little Red Hen. I have done the explanation part and I have also done the reading part. पूरा मैंने लेसन एक्सप्लेन किया है, स्टोरी बताई है, लेसन की मैंने पूरी स्टोरी आपको बता दी कि क्या स्टोरी है एंड रीडिंग पार्ट भी कंप्लीट कर दिया मैंने. ठीक है. नाउ चिल्ड्रन यू मस्ट प्रैक्टिस रीडिंग एट होम. ठीक है. आई हैव कंप्लीटेड रीडिंग पार्ट इन ऑलमोस्ट 3 पार्ट्स. जो लेसन की पूरी रीडिंग है वो मैंने 3 पार्ट्स में कंप्लीट किया है, जस्ट टू टेल यू अबाउट द प्रोनाउंसिएशन ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड सो दैट यू कैन रीड लाइन बाय लाइन. ठीक है. तो जब मैं रीड करती हूँ प्लीज रीड अलोंग विथ मी, फॉलो ईच लाइन विथ अ फिंगर इन द बुक. ओके. सो यू हैव टू प्रैक्टिस रीडिंग एट होम. अगर क्योंकि रीडिंग की प्रैक्टिस नहीं करोगे देन यू विल नॉट लर्न हाउ टू रीड. Okay, so we have done the reading part, we have done the explanation part. As we all know that this lesson is about a little red hen and 3 of her friends. One was a lazy dog, one was a sleepy cat and third friend was a noisy duck. They all used to live on a farm near a pond. एक pond के पास रहते थे, एक farm पे. One day the hen found some grains of wheat. So she picked them up. Now she asked her friends who will plant these. All 3 of them refused. She said okay I will do it. उसने उन plants को लगाया. फिर जब plants ready हो गए तो उसने पूछा who will cut them. Nobody agreed. तो उसने कहा okay I will. They all said no. तो उसने कहा okay I will do it. उसने cut किया plants को. Then she cut करने के बाद उसको threshing भी उसकी किया, मतलब grains को plant से अलग करने का काम भी किया. Then she asked कि who will take these grains to the mill for grinding. मिल तक कौन लेकर जाएगा ग्राइंड करने के लिए. Again all 3 of them refused. She said okay then I will take it. Then she took the grains to the mill. वहां पे ग्राइंड करवाने के बाद फिर उसने पूछा इसको फार्म कौन लेकर आएगा. All 3 of them refused. She got the flour back to the farm. फिर उसने पूछा who will bake bread. Nobody agreed. फिर उसने जो है ब्रेड उसका बेक किया. देन शी आस्क्ड हु विल ईट दिस ब्रेड. सो ब्रेड खाने के लिए तीनों रेडी थे, किसी ने किसी काम में उसकी हेल्प नहीं की, बट फॉर ईटिंग द ब्रेड ऑल 3 ऑफ देम वर रेडी. ऑल 3 सेड यस आई विल आई विल आई विल. बट देन शी रिफ्यूज. देन शी सेड नो आई विल नॉट शेयर इट विथ एनीवन. आई विल ईट इट ऑल बाय माई सेल्फ. बाकी सब जगह सब काम में सबने नो बोला, उसने यस किया, उसने किया काम. And when it was turn to eat it, they all said yes, but she said no. उसने किसी के साथ शेयर नहीं किया. Okay? Now children, today we would be doing spell well words first. ठीक है? Spell well words means the words which may not be very familiar to you. बहुत आपको अगर familiar ना हो words या उनकी थोड़ी सी spelling थोड़ी difficult हो, तो ये वाले words मैं लिखवा रही हूँ. You have to write the words in your notebook. You have to write the words in your notebook and as well as learn the spelling also. Spellings भी आपको learn करनी है. Okay? So now let us write the words. Little red hen. Spell well words. Spell well words. Now first word is L-A-Z-Y, lazy. Children, when you write in your notebook, जब आप अपनी notebook में spell well words लिखते हो तो you write on one side, जैसे this is your book, ये book है. ठीक है, ये book है. book में आप जैसे notebook है, आपने इधर words लिखे और अगर ये line यहाँ तक complete हो जाती है तो you can write on this side also. ठीक है, आप इस side भी लिख सकते हो words. Fine. First word is lazy.
L-A-Z-Y. Lazy means one who doesn't want to do any work. बहुत जिसको हम हिंदी में कहते हैं आलसी. Lazy means आलसी, जो काम न करना चाहता हो. ठीक है. So the dog was very lazy. Then second word is sleepy. S-L-E-E-P-Y. Sleepy. Sleepy means a person who always feels like sleeping. जिसको हमेशा नींद आती रहती है. स्लीपी का मतलब है कि जिसको हमेशा नींद आती रहती है. दैट पर्सन इज स्लीपी. जैसे हम भी कहते हैं ना कि आई एम फीलिंग वेरी स्लीपी, बहुत नींद आ रही है मुझे, आई एम गोइंग टू स्लीप. सो स्लीपी मीन्स अ पर्सन हु ऑलवेज वांट्स टू स्लीप. ठीक है. देन थर्ड वर्ड इज ग्रेन्स. थर्ड वर्ड इज G-R-A-I-N-S. ग्रेन्स. ग्रेन्स माने, ग्रेन्स का मतलब है दाने. व्हीट ग्रेन्स, राइस ग्रेन्स, किसी भी चीज के जो ग्रेन्स होते हैं, दाने, जो बर्ड्स को भी हम खाने को, जो उनका जो स्पेसिफिक खाना होता है, जिससे उनके ग्रेन्स मिलते हैं मार्केट में. सो दैट इज ऑल्सो ग्रेन्स. ग्रेन्स का मतलब है दाना. ठीक है. यहाँ पे उसको क्या मिला? शी गॉट सम ग्रेन्स ऑफ व्हीट. ग्रेन्स ऑफ व्हीट, ग्रेन्स ऑफ राइस. ग्रेन्स मतलब दाना. G-R-A-I-N-S. ग्रेन्स. फोर्थ वर्ड इज R-E-S-T-I-N-G. रेस्टिंग. रेस्टिंग मीन्स आराम करना. रेस्टिंग का मतलब है आराम करना. ठीक है. जैसे आप बहुत थक गए, थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं. ठीक है. तो रेस्टिंग मीन्स आराम करना. माई मदर इज रेस्टिंग. मम्मी ने पूरा काम कर लिया. शी इज टायर्ड, शी इज रेस्टिंग नाउ. तो रेस्टिंग मतलब आराम करना. फिफ्थ वर्ड इज M-I-L-L. मिल. M-I-L-L. मिल. मिल इज द प्लेस जहां पे व्हीट है, राइस है, ये सबको ले जाते हैं फॉर थ्रेशिंग एंड फॉर फर्दर जो भी उसका प्रोसेस होता है. व्हीट को तो हम आगे ग्राइंड करते हैं. राइस इज नॉट ग्राउंडेड फर्दर. राइस तो वैसे ही एक बार अपने प्लांट से अलग होने के बाद देन इट इज सोल्ड इन दैट मैनर ओनली. एंड व्हीट को हम ग्राइंड करते हैं. तो मिल मतलब जहां पे ये सारे प्रोसेस, राइस को भी प्लांट से अलग करने के बाद आई एम श्योर और भी कुछ प्रोसेस होता होगा, उसको करते होंगे टू क्लीन इट एंड टू डू ऑल दीज थिंग्स. तो जो भी ये सारे प्रोसेस करने के लिए जो भी जिस जगह पे ले जाते हैं, दैट प्लेस इज नोन एज मिल. ठीक है. जैसे क्लॉथ मिल, कपड़ा, जहां कपड़ा बनता है. तो किसी भी चीज का जहां प्रोडक्शन होता है, जहां पे पूरा उसकी प्रोसेसिंग होती है, काम होता है, दैट इज मिल. M-I-L-L. मिल. Then sixth word is T-H-R-E-S-H. Thresh. Thresh का मतलब क्या है? T-H-R-E-S-H. Thresh. Thresh means सीड्स को, ग्रेन्स को उसके छिलकों से, प्लांट से अलग करना. Here it was just one plant, लेकिन जब बल्क में पूरा सामान होता है, जब जैसे क्रॉप होती है व्हीट की, तो उसको सबको प्लांट से अपना अलग करना होता है, ग्रेन्स को. तो उस प्रोसेस को थ्रेशिंग कहते हैं. मिल में लेकर जाते हैं. इट इज डन थ्रू मशीन्स, क्योंकि ये तो सिर्फ एक प्लांट था, उसने अपने विल से कर दिया, बट दैट इज नॉट पॉसिबल. तो दैट द एंटायर क्रॉप इज टेकन टू द मिल. वहां पे जो थ्रेशिंग मशीन होती है, उससे सारे व्हीट ग्रेन्स को छिलके से, मतलब प्लांट से अलग करते हैं. T-H-R-E-S-H. थ्रेश. ठीक है. जैसे आपकी भी अगर नोटबुक में पेज अगर यहां तक पूरा भर गया, तो यू कैन राइट ऑन दिस साइड ऑल्सो. ओके चिल्ड्रन, आई विल राइट हियर ऑल्सो. मैं 3 लाइन्स में लिखूंगी, क्योंकि मेरे बोर्ड की लेंथ ज्यादा नहीं है. बट यू डोंट हैव टू राइट. बट आप 3 लाइन्स में नहीं लिखोगे. जस्ट पेज में इधर लिखा, पेज फिलअप हो गया तो इस साइड लिखा. एंड इधर भी अगर पूरा फिल हो गया तो वो देन प्लीज मूव टू अ न्यू पेज. ओके. ये नहीं कि एक ही पेज में कॉलम बना के छोटा छोटा अनटाइडी वर्क किया. नो. वन साइड एंड एट द मोस्ट सेकेंड साइड. एंड उसके बाद भी स्टिल वर्ड्स आर लेफ्ट, देन मूव टू द थर्ड पेज, न्यू पेज. ओके. थर्ड पेज नहीं, न्यू पेज. देन सेवेंथ वर्ड इज बरीड. B-U-R-R-I-E-D. buried. Seventh word is buried. buried मतलब दबा देना.
द वर्ड इज BURRY, बरी. जो एग्जैक्ट वर्ड है वो है BURRY, बरी मतलब दबा देना. Buried is the past form of bury. BURRY, bury. That is the word, and BURRIED is the past form of bury. ठीक है. Since the lesson is in past tense, उसने wheat grains को जो wheat grains मिले, the hen buried them in the ground, उसने दबाया, तो past form is used, buried. Then eighth word is FLOUR. फ्लावर, आटा. फ्लावर मतलब मैदा. नॉर्मली आटे के लिए हम कहते हैं व्हीट फ्लावर बोलते हैं. ठीक है. आटे के लिए भी नॉर्मली से व्हीट फ्लावर, लेकिन फ्लावर भी बोलते हैं. तो यहाँ पे आप आटा भी एज्यूम कर सकते हो, मैदा भी एज्यूम कर सकते हो. नॉर्मली ब्रेड मैदे से बनती है, आटे से भी बनती है. तो फ्लावर यू कैन से इज आटा. ओके. अच्छा, वन मोर थिंग चिल्ड्रन, इफ यू हैव एनी डाउट इन एनी स्पेलिंग कि ये क्या स्पेलिंग हो सकती है, क्या लिखा है ये, तो प्लीज चेक द बुक ऑल्सो, बिकॉज ऑल द वर्ड्स आर फ्रॉम द लेसन ओनली. कोई भी वर्ड नया नहीं है, सारे वर्ड्स लेसन में से ही हैं. तो प्लीज चेक द बुक इफ यू हैव, इन केस यू हैव एनी डाउट. गलत स्पेलिंग नहीं लिखना. ठीक है. वेदर इट इज क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग, स्पेल वेल वर्ड्स, कुछ भी है, एनी डाउट यू हैव, प्लीज check the book, because all the words are from book only. The ninth word is GRINDING, grinding. ग्राइंडिंग का मतलब होता है पीसना. जैसे मिक्सर ग्राइंडिंग होता है ना, घर पे मिक्सर के साथ ग्राइंडर होता है जिसमें हम किसी चीज को पीसते हैं. ग्राइंडिंग मीन्स टू मेक समथिंग इनटू अ वेरी फाइन पाउडर. ग्राइंड करके बिल्कुल उसको एकदम फाइन बना देना. ठीक है. उसको क्रश करके या कैसे भी करके. तो जैसे व्हीट है, व्हीट को ग्राइंड करके उसका आटा बन गया. जैसे मसाला पीसते हैं ना, मम्मी घर में खाना बनाती होंगी तो मसाला पीसती होंगी. अनियन है, गार्लिक है, टमाटो है, ग्रीन चिली है, तो उसको ग्राइंड करना है. तो क्या करते हैं, उसको मिक्सी में ग्राइंड करके पीस के बिल्कुल फाइन पेस्ट बना लेते हैं. तो ग्राइंड करना मीन्स किसी भी चीज को बिल्कुल फाइन बना देना. इफ इट इज समथिंग ड्राई तो उसका पाउडर बना देना. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट व्हीट ग्रेन्स, तो यहाँ पे इसीलिए हमने कहा कि उसका बिल्कुल फाइन पाउडर बना देना. सो ग्राइंड मीन्स पीसना. देन 10th वर्ड इज BAKED, बेक्ड. बेक जैसे मैंने लेसन पढ़ाते टाइम भी बताया था कि बेक का मतलब होता है it is a form of cooking. Baking is a form of cooking. ठीक है. जहां पे where fire is not used. Cooking जो होती है that is done through heat generated from electricity. ठीक है. जैसे बेकिंग करने के लिए ओवन है, माइक्रोवेव है, उसमें हम बेकिंग करते हैं. फायर आग नहीं जलानी होती है, एंड जो इलेक्ट्रिसिटी से जो हीट जनरेट होती है उससे कुकिंग होती है. ठीक है. जो भी चीज बनती है उससे बनती है. तो जब हम उस प्रोसेस से कोई चीज बनाते हैं, सो दैट इज सेड बेक्ड. वी डू नॉट से इट इज कुक्ड. केक को हम बेक करना बोलते हैं, केक को कुक करना नहीं बोलते हैं, बिकॉज इट इज बेक्ड. जो इलेक्ट्रिसिटी से जो हीट जनरेट होती है उस प्रोसेस से हम केक को बनाते हैं, तो इट इज सेड केक इज बेक्ड. ओके. सो बेकिंग इज अ फॉर्म ऑफ कुकिंग, एंड बेक्ड मीन्स बनाना. जिससे कुक का मतलब है कुकिंग करना, कुक मतलब खाना बनाना, तो बेक का मतलब भी है कोई चीज बनाना. ठीक है. बेकरी इज अ टाइप ऑफ कुकिंग ओनली. बेकरी खाना बनाने का एक तरीका है, एंड बेक्ड मीन्स बनाया. तो बेकरी में जो चीज हम बनाते हैं दे आर बेक्ड. जैसे बिस्किट्स हैं, ब्रेड्स हैं, पेस्ट्रीज हैं, केक्स हैं, ये सारी चीजें बेक्ड होती हैं. देन 11th वर्ड इज बार्क्ड. BARKED, बार्क्ड. बार्क्ड इज द साउंड ऑफ डॉग. जो डॉग के बार्क करने की, जो डॉग की जो आवाज होती है, भौंकना. सो बार्क मीन्स भौंकना. तो बार्क मीन्स जैसे जो उसने अपना जो यस बोला, उसने बोला, सो दैट इज बार्क्ड. द नेक्स्ट वर्ड इज PURRED, पर्ड. दैट इज द साउंड ऑफ कैट. Purring is the sound of cat. PURR is the word, and since it is in past tense, so it is
PURRED. Okay. Now children, few more words are left. अच्छा, आप इधर लिख लो इसको, then I will write. I will not write here. And in your notebook also you will write in the same manner. ठीक है, पेज में एक साइड कंप्लीट हो गया, and then you can write on the other side. इस साइड भी पूरा कंप्लीट हो जाता है, then please move to a new page. उस पेज पे आगे नहीं कंटिन्यू करोगे. ठीक है, तो मैं थोड़ा साइड में हो रही हूँ. You write the words. So I hope children you have written these 12 words. There are few more words left. वो भी अभी मुझे लिखवाने हैं, तो पहले इसको इरेज कर दूं. I hope you have written those words. ठीक है, I will only erase this side. ये अभी ऐसे में रहने दे रही हूँ. ठीक है, we have written till 12. Now अब ज्यादा नहीं है, only 5 more words are there. So 12 के बाद after 12, 13th word is quacked. 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 Quack is the sound of duck. ठीक है, जो duck की जो sound होती है, that is quack. So since the duck made that sound, that is why it is quacked. 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 Okay. Then 14th word is RIPE. Ripe. Ripe means ready to be eaten. से पक जाना. कहते हैं these mangoes are ripe. ये mangoes एकदम पक गए हैं. They are ripe. ठीक है. This banana is ripe. पका हुआ है ये. So anything, any fruit, when it is ready to be eaten, जब हम उसको खा सकते हैं, then it is said ripe. Okay, पका हुआ. Then 15th word is noisy. 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 Noisy मैंने लेसन पढ़ाते टाइम भी बताया था. Noisy means someone who makes lot of noise. ठीक है, not only कोई बहुत ज्यादा बात करता है तो आवाज होती है. तो noisy means someone who makes a lot of noise. जब कोई बहुत ज्यादा बात करेगा तो आवाज होगी ही. So that is noisy. तो duck was very noisy because it used to make lot of noise. बहुत बात करती होगी, इसीलिए noisy थी वो. Then 16th word is SWIMMING. Swimming. 16th word is swimming and 17th word is 8. ठीक है, स्विमिंग का मतलब है तैरना. स्विमिंग पूल जैसे होता है जहां पे हम तैरते हैं, तो स्विमिंग मतलब तैरना. स्विमिंग इज एन एक्शन वर्ड. ठीक है. एंड 8. ATE. 8 is the past form of the word eat. The word is eat, 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 and ATE is the past form. Like I told you कि past form में normally what do? We add D or ED. But there are some words which change their spelling. जिनकी spelling change हो जाती है past form में. तो जैसे हमने, तो 8 is one of them. ठीक है. So 8 means खाना. 8 is the past form of the word eat. Now children, you have to write these words in your English notebook. Write these spell well words in your English 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 notebook and memorize the spellings. MEMORIZE. Memorize the SPELLINGS. Memorize the spellings. ठीक है. This is again, I am telling you, this is the instruction for you. Write these spell well words in your English notebook and memorize the spelling. ये जो 1 से लेके 17 तक मैंने spell well words लिखवाए हैं. You have to write these words in your English notebook and then memorize the spelling also. Okay. Spell well words लिखवाने का पर्पस ये होता है कि firstly you may not be aware with some of the words. इसमें हो सकते हैं कुछ words आपके लिए न्यू हो, and since all these words will appear in question answer, जब आप question answer करोगे, word meaning करोगे, तो ये सारे words आएंगे. तो you don't make spelling mistake, इसीलिए ये words हम करवाते हैं. Okay.
नाउ चिल्ड्रन मैं साइड में आ जा रही हूँ. यू कंप्लीट द वर्ड्स एंड देन यू हैव टू मेमोराइज देम ऑल्सो. एंड फर्स्ट राइट इन योर नोटबुक. मैं साइड में आ जा रही हूँ. Twelve words you already must have written. Now 5 more are there. 12 words आपने लिख लिए होंगे. 5 words और बचे हैं. इसको लिख लो and after that we will start with word meanings. ठीक है. Any poem, any lesson, spell well words are always there. क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे ही जो आपके लिए नए हो सकते हैं, न्यू हो सकते हैं. एंड वर्ड मीनिंग इज ऑल्सो देयर, जिसकी मतलब जिन वर्ड्स की मीनिंग आपको हो सकता है ना पता हो. Many of you may know the meaning, many of you may not. Okay, so write the words. मैं इधर साइड में हूँ बेटा. So I hope you have written the words now, children. I hope you have written the words. Now I'm going to erase these words and I'm going to start with word meanings. Erase कर दूं. I hope सबने लिख लिया. Okay. Now word meanings. Okay. Same lesson. Word meanings. WORD word. MEANINGS word meanings. First word is NOISY, noisy. Noisy का मीनिंग क्या है? Noisy means someone who talks a lot. Someone who talks too much. Too much मतलब बहुत ज्यादा. Okay? Someone who talks too much, that person is very noisy. जो बहुत ज्यादा बात करेगा तो शोर भी होगा. अगर कंटिन्यूअसली आप भी बात करते रहोगे, सारे दिन बात करते रहोगे तो शोर होगा ही. कई मम्मी बोलती है ना कि इतना बात मत करो, इतना हल्ला मत करो. तो कोई बहुत ज्यादा बात करता है तो थोड़ा शोर होता है. तो नॉइजी मीन्स समवन हु टॉक्स टू मच. वन हु टॉक्स टू मच. One is TO2 and this is TOO2. टू मतलब बहुत ज्यादा. ठीक है. एक तो TOO2 का मीनिंग होता है भी. यहाँ पे TOO का मतलब है जैसे बोलते हैं ना टू एक्सपेंसिव, टू मच, टू हैवी. मतलब कोई चीज अगर बहुत ज्यादा हैवी है तो व्हाट डू वी से? टू हैवी. ठीक है. कोई बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव चीज है तो इसे करे वापस दिस इज टू एक्सपेंसिव. ठीक है. तो द डिफरेंस इज टू. TOO जो होता है उसको हम टू नहीं बोलते हैं. We say I'm going to the school. Too. And when it is TOO, we say too. Too heavy, too expensive, too noise, too much, too beautiful. बहुत ही खूबसूरत है, बहुत सुंदर. This is too beautiful. ठीक है. Second word is buried. BURRIED. Buried. Buried means put under the ground. Put under the GROUND. Ground. ठीक है. Buried means to put under the ground. जमीन में नीचे दबा देना. जैसे कोई चीज grains होते हैं या कोई seeds जो होते हैं, we first bury them in the ground. पहले उनको हम जमीन में दबा देते हैं. Then the shoot comes out. उसमें से baby plant जो बाहर निकलते हैं. And then that plant grows up and becomes a tree या बड़ा plant जो भी है. ठीक है. तो bury means उसको दबा देना. ओके. थर्ड वर्ड इज ripe. Ripe means fully grown and ready to be eaten. Ripe. Fully. 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 GROWN. Fully grown. Or you can also say something which is ready to eat. ठीक है. Fully grown. READY. Ready to eat. Ripe means fully grown. Fully मतलब पूरी तरह. Grow मतलब बढ़ना. तो fully grown मतलब जो पूरी तरह grow कर चुका हो. Ready to eat मतलब जो खाने के लिए बिल्कुल ready हो. जैसे कोई भी फ्रूट होता है पहले कच्चा होता है. कच्चा तो उसको हम नहीं खाते हैं, रॉ नहीं खाते हैं. When it is ripe, कुछ फ्रूट्स को हम रॉ भी खाते हैं.
तो व्हेन इट इज राइप, जैसे अभी मैंगो है तो मैंगो कच्चा, तो मैंगो एज सच हम कम खाते हैं, उसकी हम रॉ मैंगो की वी मेक चटनी, वी मेक आम का जो पन्ना वगैरह होता है अचार बनाते हैं. एंड व्हेन डू वी ईट इट, जब मैंगो को हम ऐसे कब खाते हैं, व्हेन इट इज राइप, जब पक जाता है. ठीक है, सो दैट इज राइप. देन फोर्थ इज स्लीपी. SLEEPY. स्लीपी का मतलब है रेडी टू गो टू स्लीप. रेडी टू गो टू स्लीप मतलब जो सोने जाने के लिए बिल्कुल हर समय तैयार रहता हो. बहुत जिसको नींद आती हो तो उसको क्या बोलते हैं, स्लीपी. जो मतलब हर समय बस सोने जाने के लिए रेडी हो. ठीक है, तो रेडी टू गो टू स्लीप, दैट पर्सन इज स्लीपी. देन फिफ्थ वर्ड इज ग्रेन्स. GRAINS. Grains means seeds of WHEAT, wheat, rice, etc. Grains means seeds of. Children, out of all these word meanings जितनी मैं लिखवा रही हूँ, all are not given in your book. कुछ वर्ड्स हैं जिनकी मीनिंग मुझे लगा कि यू शुड नो द मीनिंग. ठीक है, आपको मीनिंग आनी चाहिए. लाइक दिस वर्ड स्लीपी, इट इज नॉट, द स्लीपी वर्ड इज नॉट देयर इन योर बुक. ठीक है, स्लीपी वर्ड का जैसे मीनिंग मैं लिखवा रही हूँ. ग्रेन्स इज ऑल्सो नॉट देयर. ठीक है, ग्रेन्स इज ऑल्सो नॉट देयर, बट आई फेल्ट कि यू शुड नो द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स, इसीलिए मैं ये लिखवा रही हूँ. ठीक है, so grains means seeds of wheat, rice, etc. Now write these words, children. After this, 4 more words are there. ठीक है, इसके बाद 4 more words are there. तो ये आप लिखो, and then I will write 4 more words also. Word meaning ऐसे आप एक के नीचे एक लिखोगे, साइड बाय साइड नहीं लिखना है, जैसे मैं ऐसे लिखती हूँ. ठीक है, and your work should be very very neat. ठीक है ना, वर्क आपका बहुत नीट होना चाहिए. So I hope ये words लिख लिए सबने. After this 4 more words are there. Okay, so मैं थोड़ा साइड में आ गई हूँ. Write these words: noisy, buried, ripe, sleepy and grains. Okay, I think everyone has written. सबने लिख लिया. Now I am going to rub these. अभी erase करने जा रही हूँ मैं. ठीक है, स्लीपी एंड ग्रेन्स इज नॉट देयर इन योर बुक. नॉइजी है, बरीड है, राइप है. स्लीपी एंड ग्रेन्स ये दो मैंने अपने से लिखवाए हैं. ओके, आई एम गोइंग टू इरेज दीज नाउ. फिफ्थ है. नाउ सिक्स्थ वर्ड इज थ्रेश. सिक्स्थ वर्ड इज थ्रेश. नाउ चिल्ड्रन, द सिक्स्थ वर्ड इज थ्रेश. THRESH. थ्रेश. थ्रेश का मतलब क्या है? थ्रेश लेसन पढ़ाते टाइम मैंने बताया था. थ्रेशिंग मीन्स टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम द प्लांट्स. ग्रेन्स को प्लांट से अलग करना. ओके, सो दिस वर्ड इज देयर इन योर बुक. 2SEPARATE. टू सेपरेट the GRAINS. grains. To separate the grains from the plants. PLANTS. plants by beating. ठीक है, बीटिंग का मतलब ये नहीं कि वो पीटने वाला, यहाँ पे वो मारने वाला बीट नहीं है. किसी चीज को ऐसे ऐसे जोर जोर से पीटने को भी क्या कहते हैं, बीटिंग बोलते हैं. ओके, सो थ्रेश का मतलब क्या है? टू सेपरेट द ग्रेन्स फ्रॉम द प्लांट्स बाय बीटिंग. अदरवाइज जब बहुत ज्यादा क्रॉप होती है तो दीज आर टेकन टू द मिल. थ्रेशिंग की मशीन होती है. ठीक है, मशीन में ये काम करते हैं. देन सेवेंथ वर्ड इज बिल. बिल, BILL. बिल इज अ TOOL. टूल टू कट. जैसे यहाँ पे hen ने क्या किया था, द लिटिल रेड hen used a bill to cut the plant.
सो बिल एक कटिंग करने का एक इंस्ट्रूमेंट होता है. आपने देखा होगा बहुत बार विलेज वगैरह में, गांव में लेडीज या लोग जैसे घास काटते हैं तो बिल से काटते हैं. ओके. देन 8th वर्ड इज बेड. ठीक है, BAKED, बेड. दिस वर्ड इज ऑल्सो नॉट देयर इन योर बुक. ठीक है, फ्रेश है, बेड है, देन बेग्ड इज नॉट देयर, बट आई फेल्ट दैट इट इज अ न्यू वर्ड. इसका मीनिंग बहुत बच्चों को नहीं मालूम हो सकता है. दैट इज व्हाई आई एम राइटिंग. बेग्ड इज अ कुक्ड बाय ड्राई हीट. ठीक है, ड्राई हीट मीन्स जो इलेक्ट्रिसिटी से जो हमें हीट मिलती है, दैट इज ड्राई हीट. एंड 9th वर्ड इज ग्राइंड. GRIND, grind. Grind means reduce, REDUCE, reduce something to powder by, reduce something to powder by crushing it. Crushing it. जैसे पाउडर जो लगाते हैं वो एकदम फाइन होता है ना, तो ग्राइंड का मतलब है कि किसी चीज को बिल्कुल क्रश कर करके, बिल्कुल दबा दबा करके उसको एकदम पाउडर बना देना. ओके. नाउ चिल्ड्रन, अगेन राइट द वर्ड मीनिंग्स. वर्ड MEANINGS. राइट द वर्ड मीनिंग्स इन योर English, ENGLISH, English note book, and LEARN, learn them. ठीक है, ये आपको 1 से 9 तक वर्ड मीनिंग जो है अपने इंग्लिश नोटबुक में लिखना है एंड उसको लर्न करना है. तो चिल्ड्रन, टुडे आई विल स्टॉप हियर ओनली. वी हैव डन वर्ड मीनिंग्स एंड स्पेल वेल वर्ड्स. वर्ड मीनिंग्स एक बार मैं नेक्स्ट क्लास में आई विल अगेन रिपीट, एक बार फिर से रिवाइज करूंगी वर्ड मीनिंग. सो इन केस किसी का अगर छूट गया है तो यू हैव टू राइट दीज वर्ड मीनिंग्स इन योर नोटबुक. ओके चिल्ड्रन, सो दैट इज ऑल फॉर द डे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.